In this question, two positrons are at opposite corners of a square of side A is equal to 1 centimeter. The other two corners of the square are each occupied by a proton as shown in the figure. These are the two positrons and these are the two protons. Initially the particles are held in these positions, but all four are released at the same time. What will their speed be when they are a significant distance apart? The particles can be considered as classical point masses moving in each other's electric field. Gravity can be ignored. So there is no gravitational force, only electric forces are operating here. तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज जो होता है, चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑन प्रोटॉन obviously the charge is equal to the charge of electron but positive charge. And in terms of mass there is a difference. Mass of proton is about 1,836 times mass of electron. Let us see how the forces are operating between them. There is no gravity here, we have to take only electrostatic forces between the charges. So let us see how the forces are operated between these two, all having same charges. So between this positron and proton, the force will be something like this, and let us assume this force is equal to F1. And between this positron and this proton, again magnitude wise force is same, and this will be along this side. So this is the force, and again magnitude wise this is F1. And force between proton and proton, obviously the distance is changed, so because of distance the force is also changed. So force will be along this diagonal, and let us assume this force is numerically or magnitude wise this force is equal to F2. Now if we see a positron, then how the forces are operating on this positron. So force between proton and this positron, and the force is again, this force is again F1, so this is again F1. And force between this proton and this positron is again F1. And force between electron and electron, so again charges are same, both charges are equal to E and E, and distance is a root 2. So this force is numerically same, and again this is along the diagonal, and this force is equal to F2 magnitude wise. So net force on a proton and net force on a positron will be same. So net force on all four are same, and obviously overall net force will be 0. So net force on each particle, on each positron, each proton will be same. But what about acceleration? Acceleration of electron will be, acceleration of positron will be much higher, because its mass is 1,836 times less mass as that of proton. So acceleration of this positron is much greater than the acceleration of proton. So in calculating their speeds when they are at a significant separation, we have to take some approximation. तो इसमें हमें कुछ approximations यहाँ पे consider करने होंगे इस question को solve करने के लिए. Otherwise there will be two variables in single equation. So there will be two variables in a single equation. Variable will be the velocity of proton and velocity of positron. So what kind of approximation we can make here? So approximation will be from this. Acceleration of positron is much greater than the acceleration of proton because of mass. तो यहाँ पर we can assume कि जब जो ये positron है, इन positron के बीच का जो गैप है वो तेज़ी से चेंज हो रहा होगा, फास्टली चेंज हो रहा होगा, और उसके कंपैरिजन में जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के बीच का जो गैप है वो गैप बहुत स्लोली यहाँ पे चेंज हो रहा होगा. तो किसी टाइम पे अगर मैं एक डायग्राम में बनाने की कोशिश करूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलोंग द डायगोनल, ये डायगोनल के अलोंग इधर मूव करेगा, वो डायगोनल के अलोंग एंड इन दैट साइड मूव करेगा वो. तो ये डायगोनल के अलोंग मूव करना स्टार्ट करते हैं, एंड at some instant the situation will be like this. Positrons
का गैप जो है वो इतना हो जाएगा, और जो प्रोटॉन्स है प्रोटॉन्स का गैप जो है वो बहुत ही कम इंक्रीज़ होगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। तो इनका जो गैप है वो गैप आप दिखा सकते हो कि करीब करीब इतना है। तो इन दैट केस इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, सपोज इस पे अगर मैं फोर्स यहाँ पे देखूँ तो फोर्स विल बी लाइक दिस। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका फोर्स आएगा, और इसके वजह से जो फोर्स आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। और अगेन जो फोर्स यहाँ पर आएगा नेट फोर्स विल बी अलोंग दिस, और इसके वजह से यहाँ पर ये जो है इसके वजह से जो फोर्स आएगा तो ये फोर्स भी यहाँ पर इसके अलोंग ही हो जाएगा। तो नेट फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन ओनली। तो अगेन अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ये ले रहे हैं कि जिस टाइम पे पॉजिट्रॉन्स के बीच में ऑलमोस्ट इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाएगा। इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब है कि एक पॉजिट्रॉन की वजह से बाकी किसी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे देयर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ वन पॉजिट्रॉन विद अनदर चार्ज पार्टिकल्स। तो उस समय पे ऑलमोस्ट हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स के बीच का जो गैप है वो गैप अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है a√2 के इक्वल। सो गैप बिटवीन दी प्रोटॉन्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू a√2 व्हेन दिस टू पॉजिट्रॉन्स आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन। तो जब पॉजिट्रॉन्स के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन है तो प्रोटॉन्स के बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट a√2 है, यानी कि अभी भी उतना ही है। ये जो हमारा अजम्पशन है इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे कैलकुलेशंस के थ्रू। तो कैलकुलेशंस के थ्रू वी विल जस्टिफाई दिस अजम्पशन। तो पहले मैं यहाँ पे पॉजिट्रॉन की स्पीड्स कैलकुलेट कर रहा हूँ जब वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। तो सपोज़ ये मूव कर रहा है v से और ये मूव कर रहा है v से, तो यहाँ पर फ्रॉम सिमेट्री वी कैन सी कि दोनों की स्पीड बराबर होंगी। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन u इनिशियल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो u इनिशियल यहाँ पर दिस आर द 4 चार्जेस, एंड फॉर 4 चार्जेस वी विल हैव 6 टर्म्स, एंड ऑल द चार्जेस आर इक्वल इन देयर चार्ज का मैग्नीट्यूड सभी का इक्वल है। तो यहाँ पर सिंपली वी कैन राइट कि एक तो साइड का यहाँ पे टर्म्स बनेंगे और डायगोनल टर्म्स यहाँ पर बनेंगे। तो साइड के जो टर्म्स बनेंगे दैट दिस टर्म्स आर 1/4πε0 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, और इस तरीके की 4 टर्म्स वी विल हैव 4 टर्म्स लाइक दिस। और डायगोनल टर्म्स तो e स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0, डिस्टेंस इज a√2, एंड इस टाइप के वी विल हैव 2 टर्म्स, 2 डायगोनल्स। इनिशियल देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी विल बी ड्यू टू द प्रोटॉन्स ओनली, बिकॉज प्रोटॉन्स आर हैविंग सम फाइनाइट सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स, तो अगेन एक टर्म आएगा यहाँ पे प्रोटॉन्स की वजह से, तो e स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 a√2, दिस इज वन सिंगल टर्म एंड इट इज़ ट्वाइस दोनों की काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू दिस v स्क्वायर। इसमें हम लोग ऐसा भी सोच सकते थे कि प्रोटॉन का इंटरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इनिशियली भी a√2 पर है और बाद में भी a√2 पर हैं, तो उनका जो टर्म है वो कैंसिल हो रहा है दोनों साइड में, वो यहाँ पर दिख भी रहा है। यहाँ पर अगर वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करने के बाद में जो v की वैल्यू आती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 350 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे आ जाएंगे तो पॉजिट्रॉन की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और v जो होगा वो 350 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाएगा। अब इसके बाद में ये धीरे धीरे ये भी मूव करते रहेंगे, तो दिस टू आर ऑल्सो मूविंग बट स्लोली मूविंग। तो जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर आएंगे तो व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी, और यहाँ पर इनकी वेलोसिटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि क्या वेलोसिटीज़ ऐसी हैं जो कि जस्टिफाइड हैं, आर वेलोसिटीज़ आर जस्टिफाइड। तो फर्दर कैलकुलेशन करते हैं फॉर प्रोटॉन्स के लिए कैलकुलेशन। तो लेट अस कैलकुलेट फॉर प्रोटॉन्स। तो सपोज़ ये इनकी इनिशियल सिचुएशन है जब ये a√2 सेपरेशन पर है, तो यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 a√2, दिस इज़ देयर पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर इनकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ट्वाइस दिस इज़ हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू दिस v स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज़ करके व्हेन वी कैलकुलेट v, तो ये जो v यहाँ पे आता है दिस v इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.7 मीटर पर सेकेंड।
तो अब यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे ये 2.7 ही आया, और वो 2.7 पे तब आया जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुँच गए थे। तो 2.7 इज़ ऑब्वियसली मच लेस देन 350 मीटर पर सेकेंड। सो आवर अजम्पशन इज़ जस्टिफाइड। जो हमने अजम्पशन लिया था उस अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।